Okay, hello everyone. So today we will be starting with the preventive and social medicine. That is nothing but the PSM. ठीक है? We have already completed like all the basic subject. This is the last of the basic subject that we are doing है ना. ये PSM ही एक रह गया है. बाकी एनाट फिजियो बायोकेम है ना. फार्मा इससे पहले जस्ट वी हैव completed pharma and many of you have not watched the last few sessions of the pharmacology. So please go and watch those sessions है ना. मैं नीचे भी प्लेलिस्ट के सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दे रहा हूँ. And now let us start with preventive and social medicine. All of you know how important this subject is and how much difficulty people face doing this subject, क्योंकि ये बहुतों को ये क्या होता है जनरली प्रॉब्लम होता है इस सब्जेक्ट में. सो लेट अस सी, विल सी पार्ट बाय पार्ट एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस. सो लेट्स स्टार्ट. Preventive and social medicine, the first topic that we are asking is doing is concept of health and disease. So in the concept of health and disease, which of the following, the one number question, which of the following is not a part of global hunger index? Okay, so let me tell you a little bit about global hunger index and then we'll go to our answer. So let's see, what is global hunger index? It is generally comprehensively measures and tracks the hunger globally, not only in India, but this will track the record of generally hunger globally, worldwide. ठीक है? So generally it includes undernourishment, child underweight and child mortality under 5. ठीक है? So what are the components of this global hunger index? The components of global hunger index are generally undernourishment, child underweight and child mortality rate under 5, under the age 5. So this is generally the global hunger index. So now see what are there. Under 5 mortality, so it comes under global hunger index. The next is infant mortality, so it generally does not comes, it comes like child mortality, that is under the age of 5, and infant mortality is not that. Okay, so this is our answer, infant mortality. देखो, malnutrition, that is wasting and stunting, this comes under the topic of child underweight. Food inadequate supply, that comes under insufficient calorie intake, that is the part of undernourishment. ठीक है, जो फर्स्ट नंबर में हमने पढ़ा था. सो दिस इज our answer. One number का concept of health and disease में first, which is not the part of a global hunger index, and that is infant mortality is not the part of global hunger index. Let's move ahead. Labeled arrow in the given diagram, given image of rule of half for hypertension indicates. चलो सबसे पहले तो आपको क्या समझना है कि रूल ऑफ हाफ है क्या, इसमें जनरली हमको देखना है. मैं आपको दिखाता हूँ, पहले देखो. रूल ऑफ हाफ जनरली इट एक्सप्लेन्स स्टेटस ऑफ हाइपरटेंशन इन द सोसाइटी. सो रूल ऑफ हाफ इज यूज टू एक्सप्लेन द hypertension, the condition of hypertension in the society. Outermost circle in this generally shows the whole community, whereas the innermost circle, it shows adequately treated people. So let me give you the brief for all this image. So let's see, ये जो है यहाँ पे देखो, आउटर मोस्ट सर्कल, दिस आउटर मोस्ट सर्कल इट रिप्रेजेंट्स द होल कम्युनिटी. मैंने अभी बोला आपको, इट रिप्रेजेंट्स द होल कम्युनिटी. नेक्स्ट देखो, इसके बाद वाला जो सर्कल है, दिस इज हाइपरटेंसिव सब्जेक्ट्स. ठीक है. द नेक्स्ट इज डायग्नोज्ड हाइपरटेंशन केसेज, एंड नाउ इज डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड हाइपरटेंशन केसेज, एंड दिस इज द एडिक्वेटली ट्रीटेड हाइपरटेंशन केसेज. सो दिस इमेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड इन न्यूमरस एग्जामिनेशन. ठीक है. एंड रिसेंटली द रिसेंट क्वेश्चन पैटर्न ऑफ 2023 में भी इसको पूछा गया. सो दिस इज जनरली आवर होलसम जो पूरा अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए. हमको याद ही इतना करना है कि सबसे ये फर्स्ट वाला सर्कल क्या है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला एंड फिफ्थ वाला सर्कल, व्हाट आर दे जनरली मेंट फॉर. सो वो अगर हमको आ गया तो ये क्वेश्चन विल इजीली डू. और जहां भी ये क्वेश्चन हमको देखना है, ऐसा सर्कल वाला क्वेश्चन देखना है, यू मस्ट रिमेंबर इन योर माइंड दैट दिस इज नथिंग बट द रूल ऑफ हाफ्स. ठीक है, दिस इज रूल ऑफ हाफ्स. तो दिस इज जनरली फॉर एडिक्वेटली ट्रीटेड. यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सर्कल के बारे में, इनर मोस्ट सर्कल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखो, लेबल्ड ये वाला पूछ रहा है. ठीक है, ये वाला इनर मोस्ट सर्कल जिसमें लेबल्ड किया गया है. सो दिस इज जनरली एडिक्वेटली ट्रीटेड केसेज ऑफ hypertension in the community. Next देखो, according to step approach, which of the following is not included? So step approach, I have already told you about the step approach a little bit in the pharmacology session also. ठीक है. So यहाँ देखो, स्टेप अप्रोच इट इज यूज टू नो हाई रिस्क पॉपुलेशन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है. हाई रिस्क पॉपुलेशन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज असर्टेड बाय यूजिंग द स्टेप अप्रोच इन पीएसएम. इट इंक्लूड्स बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. लेट मी मेक इट लिटिल बिट लार्ज. सो स्टेप अप्रोच, व्हाट आर द criterias in this? So generally it includes behavioral and psychological factors, alcohol, smoking, exercise and diet. Next is physiological factors, that is BP, BMI and age are under this. Hormonal or biological, that is RBS, lipid profile and
thyroid profile comes under this. So this is generally the overall what you need to about the step approach. So यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, according to step approach which of the following is नॉट इंक्लूडेड. सो इंक्लूडेड क्या क्या है, तीन चीजें इंक्लूडेड है, हमने अभी पढ़ी. सो नाउ देखो, ब्लड प्रेशर, ब्लड लिपिड, इट इज अंडर दिस. ब्लड ग्रुपिंग इज नॉट अंडर दिस. सो दिस बी नंबर विल बी आवर आंसर. एंड ब्लड शुगर इज ऑफ कोर्स इन दिस. ठीक है, ये थर्ड नंबर में हार्मोनल और बायोलॉजिकल वाले में रैंडम ब्लड शुगर भी वहाँ पे आता है. नेक्स्ट देखो, a 3-year baby presented with diarrhea. On examination, baby is severely dehydrated, lethargic, high respiratory rate, BP 80/60, fluid given for management. So this is generally the case of severe dehydration. देखो, presented with diarrhea on examination, severely dehydrated दे चुका है यहाँ पे. Already the question is asking the baby is severely dehydrated. So in this case, what will you do for the management? So in this case, generally this is diagnosis. पहले इसका diagnosis बनाओ. So let's see, this is the case of severe dehydration due to generally gastroenteritis. ठीक है, this is severe dehydration due to gastroenteritis. So now लेट्स सी ट्रीटमेंट प्लान ऑफ द डायरिया. ठीक है, सो डायरिया का ट्रीटमेंट प्लान, अगर यहाँ ट्रीटमेंट प्लान अगर हम देखें देन विल बी गुड टू गो विद दिस आंसर. देखो, प्लान ए क्या होता है, ट्रीटेड एट होम वेयर देयर इज नो डिहाइड्रेशन. मेन फोकस आपको कहाँ रखना है, डिहाइड्रेशन वाला जो पॉइंट यहाँ पे दिया है उस पर यू हैव टू गिव द मेन फोकस हियर. सो प्लान ए में जो तीन ट्रीटमेंट प्लान होते हैं डायरिया के लिए. द फर्स्ट इज प्लान ए, दैट इज the people are treated at home or the baby is treated at home, there is no dehydration as such. ठीक है, नेक्स्ट प्लान बी में कौन से पढ़ते हैं, जहाँ पे साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन दिखना शुरू हो जाता है. एंड इन दैट यू हैव टू ट्रीट डिहाइड्रेशन इन clinic. You have to go to the clinic and then treat the dehydration. Next is plan C. Plan C में severe dehydration, severe dehydrated child will be treated under this plan, and in this we will be using IV fluids for the management. देखो BP भी बहुत नीचे 80/60 है, so of course we have to go for the IV fluids. ठीक है, IV fluids. So generally व्हाट विल यूज, ORS 100 ml. नहीं, ये जनरल केसेस में तो सीवियर डिहाइड्रेशन में ORS उतना काम नहीं करेगा. IV इन्फ्यूजन विथ NS और RL, दैट इज रिंगर लैक्टेट. सो यहाँ पे आपको ध्यान देना. सो विल गो विथ रिंगर लैक्टेट. सो रिंगर लैक्टेट में जनरली फर्स्ट पोर्शन ऑफ IV फ्लूइड आइसोटोनिक रिंगर लैक्टेट चलेगा. 30 ml पर kg इज टू बी गिवन वेरी रैपिडली. जो फर्स्ट पोर्शन ऑफ IV फ्लूइड होगा दैट इज आइसोटोनिक रिंगर लैक्टेट, दैट विल बी 30 ml. डोज विल बी 30 ml पर kg विल बी गिवन वेरी रैपिडली. एंड देन रिमेनिंग 70 ml per kg to complete the rehydration है ना, and given slowly over 2.5 hours depending upon the child's age. So this is generally the treatment plan of this case. Next चलो आगे देखते हैं. Which indicator is used for the comparison of life expectancy between two countries? Between two countries है देखो. HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. एंड DALI दिस जनरली चेक्स फॉर जनरली बर्डन ऑफ द डिजीज. सो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे देखो, इंडिकेटर्स इन हेल्थ, ये अगर पूरा आप पढ़ लो देन यू विल बी गुड टू गो विथ ऑल द क्वेश्चंस आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक. सो इंडिकेटर्स इन हेल्थ, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स. अगर मैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स की बात करूँ, सो इन द मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स दे आर CDR, IMR, MMR, under 5 mortality rate, NNMR, life expectancy. That is the only positive indicator in whole this mortality indicator. ठीक है, this is only positive, that is life expectancy, CFR and PMR. ठीक है, these are the जनरली इंडिकेटर्स इन मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स. नेक्स्ट अगर मैं बताऊं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर में, तो मॉर्बिडिटी इंडिकेटर में देयर विल बी इंसिडेंस, प्रिवेलेंस, एडमिशन रेट, ड्यूरेशन ऑफ सिकनेस, डिस्चार्ज रेट, स्पेल ऑफ सिकनेस एंड नोटिफिकेशन जनरली रेट. सो दीज आर जनरली द मॉर्बिडिटी इंडिकेटर. सो दे आर आस्किंग अस व्हिच इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिटवीन टू कंट्रीज. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिटवीन टू कंट्रीज इज मेजर्ड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नेक्स्ट देखो, बर्डन ऑफ डिजीज इन अ सोसाइटी इज बेस्ट इंडिकेटेड बाई, यहीं पे मैंने बताया DALY. जनरली बर्डन ऑफ डिजीज इन द सोसाइटी इज बेस्ट इंडिकेटेड बाई DALY. DALY क्या है देखो, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स. DALY इज नथिंग बट डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स. ईयर लॉस्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी और प्रीमैच्योर डेथ. Year lost due to disability or premature death, it is the best indicator of disease burden. It is the best indicator of disease burden. So next यहाँ पे हमको पढ़ना है सुलिवन इंडेक्स. So सुलिवन इंडेक्स जनरली मेजर्स डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी. देखो इसमें और कुछ क्वेश्चंस इफ दे कैन आस्क देन व्हाट आर द टॉपिक्स फ्रॉम दैट विल कम अंडर दिस मेन टॉपिक एंड द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम देयर. सो दैट आई एम टेलिंग यू. सो सुलिवन इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट इज डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी. द नेक्स्ट इज QALY. जैसे DALY हमने पढ़ा वैसे QALY is also very important. QALY is generally quality adjusted life years. Quality adjusted life years. Disability adjusted life years was DALY. Now QALY is quality adjusted life years, and it is the years live in perfect health. Years that you live in the perfect health. Next is HALE.
HAL is nothing but health adjusted life expectancy, years a newborn is expected to live in the full health. नेक्स्ट देखो YPLL, ये भी समझो, YPLL is nothing but years of potential life lost, years of potential life lost, that is years lost due to the premature death, ठीक है, that is nothing but YPLL, you must remember all these things here, ठीक है। नेक्स्ट चलो, सो यहाँ पे DLY तो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। All of the following are principles of primary healthcare except, okay, so principles of primary healthcare, so principles of primary healthcare में हमको थोड़ा सा समझना होगा। What are the principles of primary healthcare? The principles of primary healthcare are, it is based on the four principles. The principles of primary healthcare includes equitable distribution, community participation, intersectoral coordination and appropriate technology, use of appropriate technology. So यहाँ पे देखो कौन कौन सा दिया हुआ है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये है, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन दिस इज ऑल्सो हेयर, appropriate facility and equitable distribution. So equitable distribution is there but appropriate facility नहीं, appropriate technology होगा, ठीक है। So this is our answer एक्सेप्ट में। आइडेंटिफाई द लोगो गिवन इन द इमेज, सो यहाँ पे देखो ये लोगो हमसे पूछा जा रहा है। अगर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू सी यू कैन जस्ट बी अ लिटिल बिट कंफ्यूज विद द लोगो ऑफ दिस लोगो एंड द नेक्स्ट दैट इज रेड क्रॉस का लोगो, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो लेट्स सी, दिस इज द लोगो ऑफ सुरक्षा क्लिनिक, ठीक है। द सिमिलर लोगोज दैट यू मस्ट नो हेयर इज, देखो ये जो जनरली है दिस इज फर्स्ट एड किट लोगो, रादर देन एक्सप्लेनिंग आई एम शोइंग यू द डायरेक्टली फिगर्स, ठीक है। आप खुद ही आप देख लो और इसको दिमाग में रख लो। ये देखो रेड क्रॉस लोगो, इसमें जनरली बाहर से कोई रेक्टेंगल या फिर कोई स्क्वायर नहीं है, जनरली ओनली द क्रॉस साइन विल बी देयर, दैट इज रेड क्रॉस लोगो। ये क्रॉस अंडर में नीचे फर्स्ट एड लिखा हुआ है, सो दिस इज फर्स्ट एड किट लोगो। नेक्स्ट इज नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम ये वाला, एंड नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम की लोगो, दिस इज टीबी मुक्त भारत, ठीक है। सो दिस इज जनरली द लोगोज यू मस्ट रिमेंबर। यहाँ पे देखो, सो हेयर दैट इज नथिंग बट सुरक्षा क्लिनिक, दिस इज फॉर द सुरक्षा क्लिनिक। आगे देखो, ट्रू अबाउट PQLI, सो PQLI है क्या पहले वो समझ लेते हैं, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। सो PQLI इज जनरली फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इट इंक्लूड्स लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी of generally 1 year, life expectancy 1 year. So range is generally 0 to 100 होगा, PQLI is between 0 to 100, 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं रेंज। So you must remember the range of PQLI, India has the range of 65, ठीक है। So physical quality of life index, ठीक है, physical quality of life index। One more thing that you must remember is HDI, HDI जो हमने लास्ट वाले में किया था ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड्स लिटरेसी रेट, नॉलेज, इनरोलमेंट रेशियो, मीन ईयर्स ऑफ जनरली स्कूलिंग, ठीक है, इनरोलमेंट रेशियो, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इनकम, इनकम पर कैपिटा, US डॉलर परचेजिंग पावर पैरिटी, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और लॉन्गेटिविटी एट बर्थ, ये सब चीज़ें किस में इंक्लूड होते हैं, दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन HDI। रेंज इज फ्रॉम 0 to +1, ये 100 तक नहीं जाएगा, इट विल ओनली ग्रो फ्रॉम 0 to +1, एंड वैल्यू ऑफ इंडिया इज 0.633, दैट इज द 132 रैंक इन द वर्ल्ड। मीडियम डेवलपमेंट, दिस सजेस्ट दैट इंडिया इज अ कंट्री विथ मीडियम डेवलपमेंट। द नंबर 1 कंट्री ऑन दिस HDI, जनरली मैंने बोला था ना HDI दो कंट्री में generally if you have to compare between, so you will use HDI. So Switzerland has the generally a score of 0.962 and it is the most developed country and it has rank 1. So most developed country in the whole world is nothing but Switzerland, which has generally the rank 1 of HDI, ठीक है। generally human development index कितना वहाँ का, generally 0.962 and India has 0.63, बहुत पीछे है हम अभी, ठीक है। so generally we are at like 132 number। सो चलो आगे मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप चलो देख लो PQLI, लिटरेसी रेट, बर्थ रेट। ट्रू अबाउट PQLI क्या है, सो PQLI में हमने क्या क्या पढ़ा था, इट इंक्लूड्स लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 year, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 year, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लिटरेसी रेट। सो B नंबर विल बी आवर आंसर। आगे चलो, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसको बोलते हैं, सो लेट मी टेल यू अबाउट ऑल द फादर्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी एट वन प्लेस, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू टू रिवाइज, ठीक है। एट लास्ट टाइम ये ऐसे ऐसे स्लाइड्स जो होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हम लास्ट टाइम में तो जाके नहीं खोज सकते ना, सो वी हैव टू जस्ट रीड व्हाट वी हैव ऑलरेडी रेड और उसको एक बार रिवाइज कर लेना, और वो अगर एक स्लाइड में मिल जाए तो दैट इज वेरी गुड फॉर अस, ठीक है। सो लेट्स सी, फादर्स इन एपिडेमियोलॉजी, सो पूरे एपिडेमियोलॉजी के जितने फादर है सबको आज करते हैं। सो लेट्स सी, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो, ही आइडेंटिफाइड कोलेरा फॉर द फर्स्ट टाइम, जॉन स्नो वाज द पर्सन हु आइडेंटिफाइड कोलेरा फॉर द फर्स्ट टाइम। फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी इज ऑल्सो जॉन स्नो। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट्स।
First true epidemiologist is also Hippocrates and first distinguished epidemiologist is Sydenham. ठीक है, Sydenham is the first distinguished epidemiologist. Father of public health generally देखो जॉन स्नो कौन था? जॉन स्नो इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू जनरली आइडेंटिफाई कोलेरा और वहीं से पब्लिक हेल्थ का जनरली क्या हुआ, एक्सपेंडिंग शुरू हुआ. सो दैट्स वाई जनरली समटाइम्स रेटोरिकली फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसको बोलते हैं? कोलेरा को भी बोलते हैं. अगर कोलेरा नहीं आया हुआ था तो पब्लिक हेल्थ में इतना जनरली क्या नहीं हुआ होता, देयर वुड नॉट हैव बीन सच डेवलपमेंट इन द पब्लिक हेल्थ. दैट्स वाई रेटोरिकली this cholera is also called as father of public health. So National Institute of Epidemiology is located where? It is located in Chennai. ठीक है, National Institute of Epidemiology is located in Chennai. So father of public health is nothing but cholera. यहाँ पे देखो, अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, you will be like very much confused. They are asking father of public health. They have given the names of the diseases. How come this can be the options? ये चारों के चारों ऑप्शन गलत थे. चलो इसको रिव्यू करते हैं, है ना, इसको रिव्यू करते हैं, बोर्ड में डालते हैं कि कैसे हो गया. बट नो, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ रेटोरिकली किसको बोला जाता है? कोलेरा को बोला जाता है. इतना याद रखना आपको. नॉट इंक्लूडेड इन PQLI. सो PQLI में हमने देखा था लिटरेसी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 है, क्या नहीं है? इनकम नहीं है. इमेज ऑफ आइसबर्ग फिनोमिनन विथ, देखो आइसबर्ग फिनोमिनन विथ वैल्यू ऑफ 12 केसेज मेंशन्ड अबव द सरफेस, 20 एट द सरफेस, 50 बीनीथ द सरफेस. व्हिच डिजीज हैज द फॉलोइंग पैटर्न. देखो, तो इसमें सबसे पहले हमको समझना है जनरली आइसबर्ग फिनोमिनन है क्या, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. टाइम एंड अगेन द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. सो आइसबर्ग फिनोमिनन की अगर मैं बात करूँ, सो टिप ऑफ द आइसबर्ग जनरली इट शोज द क्लिनिकल केसेज और अपरेंट केसेज. ठीक है, क्लिनिकल केसेज और अपरेंट केसेज, डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड एंड सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. टिप सजेस्ट दिस मच थिंग. इफ आई टॉक अबाउट द हिडन और सबमर्ज, ऐसे अगर हम आइसबर्ग देखें, टाइटैनिक तो सबने देखा होगा ना, आइसबर्ग जो हम देखते हैं जितना कहीं पर भी, अगर ऊपर में इफ वी आर सीइंग द आइसबर्ग, इट इज ओनली द 1/3 ऑफ द आइसबर्ग. उसके नीचे बहुत सारा चीज होता है, सबमर्ज पार्ट होता है कि नहीं. सो वी आर सीइंग ओनली द 1/3, दैट इज जो ऊपर वाला होता है आइसबर्ग, जो टिप ऑफ द आइसबर्ग, उसे टिप बोलते हैं. जो नीचे सबमर्ज्ड है, और जनरली हिडन और सबमर्ज्ड पोर्शन होता है. सो जनरली हिडन एंड सबमर्ज्ड पोर्शन जनरली इन द आइसबर्ग फिनोमिनन इट सजेस्ट्स अनडायग्नोज्ड केस. हिडन यानी कि अभी तक वो डायग्नोज ही नहीं हुआ है. सब क्लिनिकल, कैरियर और असिम्प्टोमेटिक cases also comes under this hidden or submerged condition. The line of demarcation lies between the inapparent and apparent cases. ठीक है, लाइन ऑफ डिमार्केशन भी LOD भी हमको याद रखना है. सो आइसबर्ग फिनोमिनन के बारे में आपने समझा. टिप सजेस्ट व्हाट, हिडन और सबमर्ज्ड पोर्शन सजेस्ट व्हाट. सो नेक्स्ट, one more thing you must have to remember from this portion is कि no iceberg cases, no iceberg phenomenon. The iceberg phenomenon is not seen in which disease? Iceberg phenomenon is not seen in cases of measles, tetanus, rubella, pertussis, and is very important question. एक क्वेश्चन तो बनेगा यहाँ से. Diseases that follow iceberg like NCD है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर एंड जनरली TB, they generally follow the iceberg phenomenon. So this is all you need to remember about the iceberg phenomenon. And iceberg phenomenon यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? Value of 12 cases mentioned above the surface, surface ऊपर, that is tip ना, 20 at the surface, 20 at the surface, and 50 beneath the surface, that is undiagnosed case, subclinical, carrier or asymptomatic state. And this is nothing but this is followed by generally tuberculosis. ठीक है, दिस इज द ट्यूबरक्यूलोसिस. यहाँ पे देखो रेबीज, मीजल्स, टेटनस है ना, मीजल्स, टेटनस, रेबीज, ये तीनों तो फॉलो ही नहीं करते, तो यहीं से बन गया ये क्वेश्चन. आपको एक ही है जो फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज ट्यूबरक्यूलोसिस. In iceberg phenomenon, the submerged part represents, यही submerged part, this is generally undiagnosed cases in the community. Changes in occurrence of a disease over a long period of time, है ना, changes in occurrence of a disease over a long period of time, it suggests nothing but it is called as secular trend. देखो, if we talk about the time distribution of different diseases है ना, different diseases, the time distribution, so short term fluctuation in a disease, this is generally epidemic. ठीक है, epidemic. long term fluctuation in a disease is called as secular trend, and periodical fluctuation in a disease is seasonal or cyclic trend. so हर एक जो एक seasonal disease होते हैं, this was generally periodical fluctuation. अब वो सीजन आएगा, अगेन दैट डिजीज विल कम, वो सीजन जाएगा, फिर द डिजीज विल सबसाइड, अगेन दैट सीजन कम्स, अगेन द डिजीज विल कम. सो दिस इज पेरियोडिकल फ्लक्चुएशन सीन इन द केसेज ऑफ जनरली सीजनल और साइक्लिक ट्रेंड. ठीक है, साइक्लिक ट्रेंड. सो नेक्स्ट, लेट्स गो अबाउट द नेक्स्ट.
अगर मैं थोड़ा सा वो ऊपर वाला क्वेश्चन जो था, तो जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, ट्रीटमेंट प्लान ए बी और सी, बहुत शॉर्ट में मैंने बताया था। इफ़ आई टेल यू अ लिटिल बिट मोर, बट दैट विल बी इनफ, वो वहाँ से आप कर सकते हो। और ये मैंने जनरली कहाँ रख दी, आई हैव पुट दिस इन योर पीडीएफ, जो एनोटेटेड पीडीएफ है, वहाँ पे आप देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, okay, so 3 questions more. A disease condition like influenza pandemics occur every 10 years, which trend is reflected here? Okay, so tell me first of all, what is pandemic? Pandemic simply means if a disease is like कवरिंग द होल वर्ल्ड, है ना, बहुत लार्ज पीस ऑफ जनरली क्या कर रहा है, जियोग्राफी को कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पेंडेमिक। एंड वी ऑल आर एंड एविडेंस, वी हैव सीन द एविडेंस ऑफ दिस पेंडेमिक, हम सब ने देखा है एविडेंस, सिर्फ पढ़ा नहीं हमने, वी हैव सीन दिस एविडेंस, एंड दैट वाज इन द केस ऑफ कोविड-19, ठीक है। चाइना के वुहान से शुरू हुआ एंड स्टिल इट वाज एपिडेमिक, एंड वहाँ से बढ़ते 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 WHO ने इसको होल वर्ल्ड में जब ये गया तो इसको क्या बोला गया कि दिस इज पेंडेमिक। सो दिस इज जनरली a disease condition like influenza pandemic occur every 10 years, which trend is reflected every 10 years में हो रहा है, so it is nothing but cyclical trend. Accidents happening during weekends पे accident happen हो रहा है, so this is nothing but it is repeating itself in every week, so this is cyclic trend. Which of the following defines ability of an organism to cause infection? So देखो, पैथोजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी, इन्फेक्टिविटी एंड virulence, the 4 things are different. सुनने में सब एक जैसे लग रहे हैं, but everything is different here. So see, pathogenicity generally means ability to induce clinically apparent illness. ठीक है, पैथोजेनिसिटी मीन्स पैथोजन सिंपली, इफ यू जस्ट रिकॉल योर क्लास 11 and 12, देन ऑल्सो इन द डिजीजेज चैप्टर यू मस्ट हैव जनरली रेड अबाउट दिस, कि जनरली पैथोजेंस आर दोज जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीजेज. सो पैथोजेनिसिटी इज व्हाट, एबिलिटी टू इंड्यूस क्लिनिकली अपेरेंट इलनेस. सो दिस इज जनरली पैथोजेनिसिटी. If we talk about the infectivity is the ability to invade and multiply. So infectivity is an ability to invade your body and then multiply inside your body. So this is nothing but produce infection in the host. ठीक है. virulence का मतलब क्या होता है? virulence simply means proportion of clinical cases resulting in severe clinical manifestation. So like many clinical cases came, but generally some proportion of those clinical cases resulted in severe clinical manifestations and some does not result in generally the severe clinical, आया और थोड़े दिन बाद ठीक हो गया, उतना सीवियर मैनिफेस्टेशंस नहीं हुआ. सो दैट इज द कैपेसिटी, दैट कैपेसिटी टू कॉज दैट सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज कॉल्ड एज विरुलेंस. ठीक है, सो दिस इज विरुलेंस. सो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू कॉज इन्फेक्शन. सो दिस इज नथिंग बट इन्फेक्टिविटी. ठीक है, इन्फेक्टिविटी. यू मस्ट रिमेंबर दिस 3 थिंग्स, पैथोजेनिसिटी, इन्फेक्टिविटी एंड विरुलेंस. दिस 3 थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, very important. Okay, so for this much for today. In the next topic we'll do this study designs and preventive measures. आज यहीं पे खत्म करते हैं. Okay.